Good morning, all of you. In the practical of biochemistry and clinical pathology, you have to check or identify the unknown sample by different qualitative analysis test. In that biochemistry, firstly you have to check three categories of sample, that is carbohydrate, proteins and amino acid. So firstly, those sample you have taken from teacher, you have to identify, that is category, that means which is carbohydrate or which is protein or which is amino acid sample. So firstly you have to check which category of sample you have to taken from teacher, that is carbohydrate, protein or amino acid. So you have to first perform Mole's test. Okay, so in that Mole's test, see Mole's test, you have to take 2 ml of unknown sample with 5 drops of Moleish reagent and the test tube, and gently through the side by tickling the tube about 2 ml of concentrated sulfuric acid, so as to form a bottom layer, that is violet or purple ring at the junction of two liquid or between two liquid. So if you have to perform Mole's test with your unknown sample, okay, you have to take an unknown sample, then with the help of with the unknown sample you have to take Mole's test, you have to perform Mole's test, and unknown sample gives violet or purple ring at the junction between two liquid with Moleish reagent. That means this is concluded that your unknown sample is carbohydrate. Okay, यदि Mole's टेस्ट प्रेजेंट आती है, जो भी आपका अननोन सैंपल है, जो भी आप अपने टीचर से लिया है अननोन सैंपल, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी का है या प्रोटीन के कैटेगरी का है या अमाइनो एसिड की कैटेगरी का है. ओके, सैंपल लिया, उसकी फर्स्ट Mole's टेस्ट की. Mole's टेस्ट यदि प्रेजेंट आती है मतलब वॉयलेट पर्पल रिंग यदि प्रोड्यूस हो रही बिटवीन दी एट दी जंक्शन बिटवीन टू लिक्विड, दो लिक्विड के सेंटर में यदि वॉयलेट पर्पल रिंग प्रेजेंट आ रही है, इसका मतलब आपका सैंपल कार्बोहाइड्रेट है. ओके, सो आफ्टर दैट यदि Mole's टेस्ट एब्सेंट आई, सो आप सेकेंड टेस्ट करोगे, दैट इज टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड. सी इन दैट अमाइनो एसिड, identify amino acid, you have to perform Nin-Hadron test. Okay, in that Nin-Hadron test, take unknown sample and perform Nin-Hadron test. If Nin-Hadron test produce blue violet color produce, that means it concluded that your unknown sample is amino acid. ओके, जैसे Mole's टेस्ट आपने की, Mole's टेस्ट प्रेजेंट आई, इसका मतलब आपका सैंपल, जो आपका अननोन सैंपल है वो कार्बोहाइड्रेट है. और Mole's टेस्ट एब्सेंट आई तो आप Nin-Hadron टेस्ट करोगे. दिस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड. ओके, जैसे Mole's टेस्ट कार्बोहाइड्रेट पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए है, वैसे ही Nin-Hadron टेस्ट है अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई करने के लिए. सो इफ Nin-Hadron test provide blue or violet color, that means it concluded that amino acids are present. That means your unknown sample is amino acid. Okay, if Nin-Hadron test can't produce blue violet color or it is absent, okay, यदि Nin-Hadron test absent आई मतलब amino acid यदि नहीं है, तो आप प्रोटीन के लिए टेस्ट करोगे. See, Biuret test for identification of proteins. If in that Biuret test purple or pinkish purple color is developed, that means it concluded that your unknown sample is proteins. Okay, यदि Biuret test प्रेजेंट आ रही है, इसका मतलब आपका सैंपल प्रोटीन से. ओके, जो भी आपने अननोन सैंपल लिया है, फर्स्टली बायोकेमिस्ट्री में आपको फर्स्टली आपको जो अननोन सैंपल आइडेंटिफाई करने वो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के, प्रोटीन कैटेगरी के और अमाइनो एसिड कैटेगरी के. ओके,
जो भी आपने टीचर से अननोन सैंपल लिया, फर्स्टली आप मोलिस टेस्ट करोगे, मोलिस टेस्ट प्रेजेंट आती है तो आपका सैंपल कार्बोहाइड्रेट है, और बायोरेट टेस्ट प्रेजेंट आती है तो आपका सैंपल प्रोटीन है, निनहाइड्रेट टेस्ट प्रेजेंट आती है तो आपका सैंपल अमाइनो एसिड है। ओके, सो जो टेस्ट प्रेजेंट आती है उसका चार्ट दिया है। अभी ये प्रोटीन का चार्ट है, यदि बायोरेट टेस्ट प्रेजेंट आती है तो ये चार्ट फॉलो करना। प्रोटीन में भी वेरियस एग्जाम्पल है, सो वो आपका जो अननोन सैंपल है वो कौन सा प्रोटीन से वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी फर्स्ट हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रैक्टिकल्स करने हैं। ओके, आपने अननोन सैंपल मोलिस टेस्ट की, उसका यहाँ पर टेस्ट दिया है, टेस्ट कैसे करना है, उसमें क्या ऐड करना है, उसका क्या ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो दिया है, जैसे ये मोलिस टेस्ट का पर्पल वॉलेट कलर दिया है, यदि ये प्रेजेंट आता है तो इसका मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, आपने मोलिस टेस्ट परफॉर्म की, जो अननोन सैंपल मैंने आपको दिया वॉलेट पर्पल रिंग आई, आपका सैंपल कार्बोहाइड्रेट है। सो यदि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसमें भी 6 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सैंपल। ओके, सो इफ मोलिस टेस्ट present, molis test provide violet purple ring at the junction between two links. That means it concluded that carbohydrate present. So you have to check which type of carbohydrate present. That means your unknown sample is which type of carbohydrate. So for the identification of your unknown sample which type of carbohydrate, so you have to follow this carbohydrate chart. ये चार्ट आपको फॉलो करना है, ये फॉलो करके आपको पता चलेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप कंफर्म कर पाओगे कि आपका कार्बोहाइड्रेट सैंपल कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट में 6 सैंपल है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। सी फर्स्टली मोलिस टेस्ट की पर्पल कलर आया, आपको पता चला या आपको कंफर्म हुआ कि आपका सैंपल कार्बोहाइड्रेट है। ओके, आप उसके बाद नेक्स्ट you have to perform solubility test. Solubility means soluble, that means solid particle dissolve in, completely dissolve in or completely soluble in water or vehicle, in vehicle, that is called as soluble. Okay, so आपको थोड़े वाटर 1-2 ml में थोड़ी सी जो आपका अननोन सैंपल है पाउडर है वो मिक्स करना है। यदि वो डिजोल्व हो रहा है, दैट मीन्स योर अननोन सैंपल इज सोल्यूबल इन वाटर। ओके, यदि पाउडर जो आपका अननोन सैंपल है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो रहा है, मतलब इनसोल्यूबल। ओके, इनसोल्यूबल यदि हुआ तो आप ये टेस्ट करेंगे। ये जो चार्ट दिया है, चार्ट में जो एरो दिए है उस एरो को सिर्फ आपको फॉलो करना है। सो फाइनली आप कंफर्म कर पाओगे कि आपका अननोन सैंपल कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जो 6 एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट के, उसमें से कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट है। ओके, यदि इनसोल्यूबल आ रहा है वाटर में तो आप आयोडीन टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट पीछे दिए, टेस्ट कैसे करने, उसका क्या ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, आया तो प्रेजेंट, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ नहीं आया तो एब्सेंट। ओके, आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट यदि प्रेजेंट आ रही है, आयोडीन टेस्ट ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रही है, सो इसका मतलब आपका सैंपल स्टार्च है। ओके, कार्बोहाइड्रेट में का एक सैंपल, जो आपका एक सैंपल है, यदि स्टार्च ब्लू कलर प्रेजेंट आया तो आपका सैंपल स्टार्च है। दिस इज पॉलीसैकेराइड। सो यदि स्टार्च ब्लू कलर आ रहा है तो आप नेक्स्ट स्टार्च की सिटी करोगे। दिस इज सिटी ऑफ स्टार्च। ओके, ये ब्लू कलर प्रोवाइड हुए, यहाँ पर थर्ड सिटी पर नो ब्लू कलर प्रोवाइड हुआ, इसका मतलब स्टार्च कंफर्म। दिस इज सिटी फॉर स्टार्च। ओके, सिटी यानी कंफर्मेटरी टेस्ट, दैट मीन्स यू हैव टू क्रॉस चेक, दैट इज यूर अननोन सैंपल इज स्टार्च और नॉट। ओके, आयोडीन टेस्ट ब्लू कलर प्रोवाइड हुआ मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, और दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट, आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो सच में ये स्टार्च ही है। यदि ये प्रेजेंट आए मतलब कंफर्म योर सैंपल, योर कार्बोहाइड्रेट सैंपल इज स्टार्च। एक सैंपल हो गया, रिमेनिंग 5। नेक्स्ट, मोलिस टेस्ट प्रेजेंट आने पर आपने सोल्यूबिलिटी की और सोल्यूबल सैंपल यदि आया तो ऑब्वियस लेफ्ट साइड एरो है तो हमें एरो को फॉलो करना है। लेफ्ट साइड एरो पर यू हैव टू परफॉर्म
फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉमर्स टेस्ट। ओके, ये तीनों टेस्ट यहाँ पर दिए, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट, टॉमर्स। सो तीनों टेस्ट यदि प्रेजेंट आ रही है, ओके, तीनों टेस्ट प्रेजेंट आ रही है, रेड येलो कलर जो भी दिए हुए वो यदि प्रेजेंट आ रहे, सो इट कंक्लूडेड दैट यूर अननोन सैंपल, यूर unknown carbohydrate sample is either glucose, either fructose, either lactose or either maltose। ओके, सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल आने पर ये तीन टेस्ट करना है, फेलिंग, बेनेडिक्ट, टॉमर्स। तीनों टेस्ट यदि प्रेजेंट आ रहे हैं, प्रेजेंट आए तो ये 4 सैंपल में से एक कार्बोहाइड्रेट का सैंपल आपका है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओके, सो और यदि ये तीनों टेस्ट प्रेजेंट नहीं आए, दैट मीन्स नो रेड कलर वगैरह, ये तीनों टेस्ट यदि एब्सेंट आए तो आपका सैंपल सुक्रोज है। तो आपको इन्वर्जन टेस्ट करनी है, पीछे कॉलम में दिया है सुक्रोज, फिर उसकी सीटी करनी है। यदि उसका ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट आया, दैट मीन्स कंफर्म योर सैंपल सुक्रोज है। ओके, स्टार्च और सुक्रोज 6 में से 2 कार्बोहाइड्रेट के सैंपल आपने देखे, अभी रिमेनिंग 4। तीनों टेस्ट प्रेजेंट ना आए तो ये 4 सैंपल है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। सो उसके बाद बारफोर टेस्ट करनी है, ये एरो को फॉलो करना है, बारफोर टेस्ट करनी है। बारफोर टेस्ट यदि एब्सेंट आ रही है, नो रेड कलर, बारफोर टेस्ट हमें वाटर बाथ में बॉयल हीट करना होता है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रेड पीपीटी ऑकर होते हैं। यदि बारफोर टेस्ट एब्सेंट आई तो उसका मतलब योर सैंपल, योर अननोन कार्बोहाइड्रेट सैंपल इज आइदर लैक्टोज और आइदर माल्टोज। ओके, बारफोर टेस्ट एब्सेंट आई तो ये लैक्टोज, माल्टोज दोनों में से एक सैंपल है। सो दोनों में से एक प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओसाजोन टेस्ट करेंगे। ओसाजोन टेस्ट में सी यहाँ पर ओसाजोन टेस्ट दिए, ओसाजोन में ग्रीनिश येलो निडल शेप क्रिस्टल आए तो आपका सैंपल ग्लूकोज है। बैडमिंटन बॉल पाउडर पफ शेप क्रिस्टल आए, ये दिस इज एग्जामाइन अंडर माइक्रोस्कोप, ये शेप आपको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामाइन करना है। ओके, ओसाजोन टेस्ट के पाउडर पफ शेप आए तो आपका सैंपल लैक्टोज है, और सनफ्लावर की शेप आए तो आपका सैंपल माल्टोज है। सो ये शेप कैसे पहचानने, इसकी डायग्राम यहाँ पर दी है, ये लैक्टोज की शेप और ये माल्टोज की शेप। ओके, सो जो शेप आएंगे फिर उसकी सीटी करना। आफ्टर दैट यू हैव टू कंफर्म योर सैंपल आइदर लैक्टोज और आइदर माल्टोज। ओके, हमने स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज 4 सैंपल देखे कार्बोहाइड्रेट के, रिमेनिंग 2 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सी बारफोर टेस्ट यदि प्रेजेंट आ रही है, मतलब रेड कलर आ रहा है, तो ये एरो फॉलो करो, दैट मीन्स योर सैंपल आइदर इज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, आपका ग्लूकोज सैंपल है या फिर फ्रुक्टोज है। सो आपको ये 2 टेस्ट करनी है। यदि आपका रेड कलर बारफोर टेस्ट प्रेजेंट आ रही है तो दोनों में से एक सैंपल है, फिर दोनों में से एक आपको कंफर्म करने के लिए आपको ये टेस्ट करनी है, रैपिड फर्पुलर टेस्ट और शेलिवानोव टेस्ट। यदि रैपिड फर्पुलर का वॉयलेट कलर आया और शेलिवानोव टेस्ट का रेड कलर आया, दैट मीन्स योर सैंपल इज फ्रुक्टोज। ओके, रैपिड का वॉयलेट कलर प्रोड्यूस आया, शेलिवानोव का रेड कलर, ये दोनों टेस्ट प्रेजेंट आई तो ये आपका सैंपल फ्रुक्टोज है। फिर फ्रुक्टोज की सीटी करना, सीटी पीछे दी होती, जैसे लैक्टोज की सीटी है, ग्लूकोज की सीटी है, ये आयोडीन मतलब ये स्टार्च की सीटीज है, देन ये सुक्रोज की सीटी है, ये फ्रुक्टोज की सीटी है। ओके, फ्रुक्टोज की सीटी करना। उसके बाद रैपिड फर्पुलर और शेलिवानोव यदि एब्सेंट आई, मतलब नो वॉयलेट कलर, नो रेड कलर, तो इसका मतलब इट कंक्लूडेड दैट योर सैंपल इज ग्लूकोज। ओके, ये दोनों प्रेजेंट आई तो सैंपल फ्रुक्टोज है, ये दोनों एब्सेंट आया रैपिड और शेलिवानोव तो आपका सैंपल ग्लूकोज है। ओके, सो ग्लूकोज की आपको सीटी करनी है। ओके, सो आपको सिर्फ ये चार्ट फॉलो करना है कार्बोहाइड्रेट सैंपल आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, कार्बोहाइड्रेट के मैंने जैसे बताया 6 मॉलिक्यूल टोटल कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज,
और स्टार्च। ये 6 कंपाउंड है, जैसे मैंने बोला ये चार्ट करके फॉलो करना, सिर्फ आपको एरो फॉलो करना है। मोलिस्टेस आई थे इसलिए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, फिर बाद में आपने एज पर डिपेंड ऑन सोल्युबिलिटी एरो फॉलो किया। इनसोल्युबल रहा तो स्टार्च, और सोल्युबल रहा तो ये तीनों टेस्ट की, फेलिंग बेनेडिक्ट टॉमस। तीनों प्रेजेंट आई तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज चारों में से एक सैंपल है, और ये तीनों एब्सेंट आई मतलब ये एरो मतलब आपका सैंपल सुक्रोज है। ओके, फिर ये यदि प्रेजेंट आई, ये चारों में से एक कौन सा है तो बारकोड टेस्ट करना। बारकोड टेस्ट प्रेजेंट आती है तो 2 सैंपल है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। बारकोड टेस्ट एब्सेंट आती है तो लैक्टोज, माल्टोज सैंपल है। फिर ओसेजोन टेस्ट करना, माल्टोज या लैक्टोज। अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन, शेप आइडेंटिफाई करके आपको पता चलेगा कि लैक्टोज है कि माल्टोज है। सनफ्लावर शेप है कि आप पाउडर पफ शेप है। आफ्टर दैट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज को आइडेंटिफाई करना, तो ये दोनों टेस्ट करना। रैपिड, फर्फूरस, शेलियोनम। रैपिड का वॉयलेट कलर और शेलियोनम का रेड कलर आया तो सैंपल फ्रुक्टोज है, और ये दोनों टेस्ट एब्सेंट आई तो सैंपल ग्लूकोज है। ऐसे 6 सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के आपको आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट सिटी फॉर कन्फर्मेशन, यहाँ पर सिटी डे से सिटी ऑफ स्टार्च, ये तीनों सिटी। आफ्टर दैट सिटी ऑफ ग्लूकोज, सिटी ऑफ लैक्टोज, देन सिटी ऑफ सुक्रोज एंड सिटी ऑफ फ्रुक्टोज। सो आफ्टर दैट एज इट इज आपको यहाँ पर जो टेस्ट दिए, जैसे मॉलिस टेस्ट, आपने चार्ट फॉलो करके जो जो टेस्ट किया, जैसे जो जो टेस्ट आप कर रहे हो, जो ऑब्जर्वेशन आया, सेम आपको यहाँ पर लिखने टेस्ट, यहाँ से देख के टेस्ट में क्या क्या ऐड करना है, एज इट इज सेम टेस्ट लिखना है। फिर उसका ऑब्जर्वेशन क्या आया क्या नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव यू यहाँ पर लिखना है। और इन्फरेंस यहाँ पर जैसे प्रेजेंट है ऑब्जर्वेशन तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, यहाँ पर का सेम इन्फरेंस आपको राइट डाउन करना है अप टू सिटी तक। ओके, आफ्टर दैट रिजल्ट्स सी गिवन सैंपल ऑफ, जैसे फर्स्ट सैंपल है गिवन सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। अभी सपोज ग्लूकोज ये सैंपल आपका आइडेंटिफाई हुआ तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन को बिलोंग्स करता है। जैसे लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ड्रॉ करके दिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन। इन दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के सब टाइप ट्रायोस। ओके, मतलब वहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ग्लिसर, अल्डिहाइड उसका एग्जाम्पल है। देन टेट्रोज, एरिथ्रोज, पेंटोज, राइबोज, हेक्सोजेस, ग्लूकोज, हेप्टोजेस, ग्लूकोहेप्टोजेस। आफ्टर दैट डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज। आफ्टर दैट ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोट्रायोस। आफ्टर दैट पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के 2 सब टाइप है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, और हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है हेपेरिन। हेपेरिन मतलब एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मीन्स प्रिजर्व द ब्लड क्लॉटिंग। जैसे हमारे ब्लड में नेचुरली एंटीकोएगुलेंट फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे बॉडी में हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, वो प्रिजर्व फॉर्म में रहना चाहिए, इसलिए एंटीकोएगुलेंट हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरफेरिन, सोडियम हेपेरिन। ओके, सोडियम वॉरफेरिन, हेपेरिन एंड कोएगुलेंट मतलब उसके वजह से कॉजेस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन फैक्टर मतलब जैसे माइनर यदि स्किन कट हुई, माइनर या मेजर एक्सीडेंट हुआ, सपोज माइनर हुआ तो जो हमारी ब्लीडिंग होती है कुछ टाइम नेचुरली वो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर कट होता है वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। उस क्लॉट के वजह से, जम जाने की वजह से अंदर का ब्लड बाहर आ नहीं पाता है। ओके, ब्लीडिंग हो नहीं पाती है, सो हेमोरेज को वो स्टॉप करता है, दैट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का एग्जाम्पल थ्रोम्बिन। और ये जो हेपारिन है उसके अपोजिट है, दैट इज एंटीकोएगुलेंट, मतलब ब्लड को कोएगुलेशन मतलब वो जमने नहीं देता है, घोटने नहीं देता है। कहाँ पर? बॉडी के अंदर। यदि बॉडी के अंदर ब्लड जम जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड प्रिजर्व फॉर्म में रहने के लिए एंटीकोएगुलेंट नेचुरली हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम वॉरफेरिन एंड हेपेरिन। सो आपको रिजल्ट में जो भी आपका सैंपल
अननोन सैंपल जैसे दिया था आपने फर्स्ट 3 टेस्ट की कि सैंपल आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है कि अमीनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिस टेस्ट से पर्पल कलर की रिंग आई तो सैंपल मॉलिस टेस्ट प्रेजेंट आई तो सैंपल कार्बोहाइड्रेट है। फिर आपने बायोरेट टेस्ट की, यदि बायोरेट टेस्ट प्रेजेंट आई तो आपका सैंपल प्रोटीन था। आफ्टर दैट आपने नीन हाइड्रेट टेस्ट की, नीन हाइड्रेट प्रेजेंट आई तो आपका सैंपल अमीनो एसिड है। ओके, जो टेस्ट प्रेजेंट है उस टेस्ट का मतलब उस सैंपल का चार्ट आपने फॉलो किया। फॉर एग्जांपल मॉलिस टेस्ट प्रेजेंट आई मतलब सैंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में अभी 6 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। सो आपने चार्ट फॉलो करके जो सैंपल था कार्बोहाइड्रेट का वो आइडेंटिफाई किया। जैसे अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपका ग्लूकोज सैंपल है। ओके, सो ग्लूकोज है कौन से क्लास का है, सी दैट क्लासिफिकेशन। ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड से, ओके, मोनोसैकेराइड से ग्लूकोज, सी। देन आपके टोटल 6 कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड है, देन फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है, माल्टोज लैक्टोज हमारा ओलिगोसैकेराइड है, देन सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड है, सी डाइसैकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज है, ओलिगोसैकेराइड का माल्टोज है। सो आफ्टर दैट स्टार्च का सी, यहाँ पर पॉलीसैकेराइड होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल स्टार्च है। सो दिस इज पॉलीसैकेराइड, ये आपको राइट डाउन करना है। रिजल्ट में आपको सैंपल कौन सा आइडेंटिफाई किया वो मेंशन करना है, दैट इज गिवन सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, जैसे आपका फर्स्ट ग्लूकोज था तो ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज है कौन सा सैकेराइड है, सो इट इज मोनो है, डाई है या पॉली है। ओके, सो ग्लूकोज ऑब्वियस इट इज मोनोसैकेराइड। सी मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है हेक्सोसेस के अंदर ग्लूकोज। ओके, सो ये हो गए आपके टोटल 6 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 2 तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 तक। ओके, टोटल 6 सैंपल है कार्बोहाइड्रेट के, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 टू एक्सपेरिमेंट नंबर 7 तक प्रैक्टिकल। आपको टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस लिखना है, उसके बाद रिजल्ट लिखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे से जो क्वेश्चनिंग है ब्लैंक स्पेस दिया आंसरिंग के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, आफ्टर दैट सी फर्स्ट प्रैक्टिकल था इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरी, जैसे हमने थोड़े सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फ्लूइड या 2 लिक्विड मिक्सचर सेपरेट करते वो हमने देखा था। देन कोलोरीमीटर देखा था, कलर सेंसिटिव डिवाइस। देन हमने नंबर्स ऑफ इक्विपमेंट देखे थे जो बायोकेमिस्ट्री लैब में। आफ्टर दैट अभी हमने ये कार्बोहाइड्रेट के प्रैक्टिकल देखे जिसमें 6 सैंपल है, 1 2 3 4 5 6 टोटल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 प्रैक्टिकल नंबर 7। नेक्स्ट हम अमीनो एसिड देखेंगे। टू डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड वी हैव टू परफॉर्म नीन-हाइड्रेट टेस्ट। इफ नीन-हाइड्रेट टेस्ट गिव्स bluish violet color, that means it concluded as your unknown sample is amino acid. After that, in that amino acid there are 1 2 3 4 5 sample. Okay, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम अमीनो एसिड देखेंगे। आफ्टर दैट अमीनो एसिड प्रोटीन्स प्रैक्टिकल से हियर 1 2 3 सैंपल्स ऑफ प्रोटीन। फॉर द प्रोटीन डिटर्मिनेशन बायोरेट टेस्ट परफॉर्म फॉर द अननोन सैंपल ऑफ प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन के लिए बायोरेट टेस्ट है। इफ बायोरेट टेस्ट गिव्स ब्लूइश पर्पल कलर, that means it concluded as your unknown sample is protein. Okay, and नीन-हाइड्रेट टेस्ट provide bluish purple violet color, that means it concluded as your unknown sample is amino acid. Okay, so सबसे पहले जो भी अननोन सैंपल लिया कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिस टेस्ट परफॉर्म करना, वो एब्सेंट आई तो फिर अमीनो एसिड के लिए नीन-हाइड्रेट टेस्ट प्रेजेंट करना, वो भी एब्सेंट आई तो फाइनली
प्रोटीन की जैसे बायोरेट टेस्ट प्रेजेंट आ ही जाएगी। और फर्स्ट ही जैसे आज हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रैक्टिकल देखे, फर्स्ट ही मोलिस टेस्ट प्रेजेंट आ गई, सो आगे के अमाइनो और प्रोटीन की न्यू हाइड्रोजन बायोरेट टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमारी कार्बोहाइड्रेट के प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए। नेक्स्ट टाइम हम अमाइनो एसिड देखेंगे। ओके।